یہ تقریب دو واقعات کی وجہ سے قابل ذکر رہی۔ ایک 22 دنوں تک جاری رہنے والی سن 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ، اور پھر اس کے بعد ایک سینئر سفارتکار اور ان کے اہل خانہ کا پاکستان سے کامیابی کے ساتھ فرار۔ ان واقعات کی تفصیل اسکیپ فرام پاکستان میں ڈیبورا این شے نے تحریر کی ہے، جو اس وقت کراچی میں اپنے والد اور انڈین ڈیفنس اتاشی جیک شے کے ہمراہ موجود تھیں۔ انڈیا کے نائب ہائی کمشنر اوما شنکر واجپئی کی جانب سے منعقد کی گئی جشن کی یہ تقریب اچانک ہنگامہ خیزی میں بدل گئی، کیونکہ تقریب میں موجود انڈین ڈیفنس اتاشی جیک شے کو نامعلوم افراد نے اس عمارت کے ایک باتھ روم میں پکڑ لیا اور انہیں مار مار کر تقریباً نیم مردہ حالت میں پہلی منزل سے عمارت کے احاطے میں پھینک دیا۔ جیک شے کو کراچی کے ایک ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا کہ ابتدائی معائنہ میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے جسم کی تقریباً تمام ہڈیوں کو کسی نہ کسی طور شدید چوٹ پہنچی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جیک شے کی بیٹی اور اسکیپ فرام پاکستان کی مصنفہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد کے ساتھ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کے والد ایک انڈین سفارتکار اور ان کے اہل خانہ کو پاکستان سے فرار کروانے کے ذمہ دار تھے۔ جس انڈین سفارتکار کو بمائے اہل خانہ فرار کروایا گیا تھا، انہیں پاکستان میں جاسوسی کے الزامات کے تحت گرفتار کیے جانے کا شدید خطرہ لاحق تھا۔ ڈیبورا این شے نے انڈین سفارتکار کے پاکستان سے فرار کی اس کہانی کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے جہاں بعض اوقات حقیقت اور فسانہ کا ایک دوسرے میں ضم ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ جہاں اس کہانی میں ٹھوس حقائق موجود ہیں، وہیں سفارتکاروں کی زندگیوں پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور پھر فرار کی وہ غیر معمولی کہانی جو کسی جاسوسی ناول کی طرح اپنے اندر تمام تر تجسس کو برقرار رکھتی ہے۔ ڈیبورا این شے بتاتی ہیں کہ جب انڈین ہائی کمیشن کے ایک اہم اہلکار پر جاسوسی کے الزامات کے بادل چھائے جانے لگے اور ان کی گرفتاری سر پر لٹکتی تلوار کی طرح واضح نظر آنے لگی، تو اس وقت کے انڈین ہائی کمشنر جی پارتھا سارتھی کو ہدایت دی گئی کہ کسی بھی صورت جلد از جلد انہیں پاکستان سے انڈیا روانہ کیا جائے تاکہ متوقع گرفتاری سے بچا جا سکے۔ ان ہدایات کے بعد ہائی کمشنر نے نائب ہائی کمشنر اوما شنکر واجپئی کے ساتھ تینوں ملٹری اتاشیوں اور فرسٹ سیکریٹری فرینک دیورز کو طلب کیا۔ میٹنگ میں شامل تمام افسران کا متفقہ خیال تھا کہ حکومت پاکستان جاسوسی کی بات کو انتہائی سنجیدگی سے لے گی اور مبینہ جاسوس سفارتکار کے خلاف سخت ترین اقدامات سے گریز نہیں کرے گی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ انتہائی رازداری برتتے ہوئے سفارتکار کے پاکستان سے نکلنے کا بندوبست کیا جائے۔ اب سب کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا کہ یہ ذمہ داری کسے سونپی جائے جو اس مہم کو خفیہ طور پر کامیابی سے انجام دے سکے۔ کتاب میں لکھی تفصیلات کے مطابق میٹنگ میں موجود کسی شخص نے بھی اس مہم کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش نہیں کیا، اور بالآخر ہائی کمشنر اور ان کے نائب نے ڈیفنس اتاشی جیک شے کے نام پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ انڈین ہائی کمشنر نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کین یو ہینڈل اٹ؟ جیک بظاہر اس براہ راست سوال کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے نظریں چرائے بغیر جواب دیا، یس سر۔ اس کے ساتھ ہی ہائی کمشنر نے اعلان کیا کہ بہت خوب، ہائی کمیشن کے تمام وسائل تمہارے اختیار میں ہیں، آپ صرف مجھے رپورٹ کریں گے اور کسی کو نہیں، ہم آمنے سامنے بات کریں گے، اپنے ثوابدیدی طاقت کا دانش مندی کے ساتھ بھرپور استعمال کریں۔ جیک نے جواباً کہا کہ سر میں اس پر مسٹر دیور انڈین فرسٹ سیکریٹری اور مسٹر واجپئی کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ ڈیبورا بتاتی ہیں کہ ہر چند کے جیک انڈین بحریہ کے ایک قابل افسر تھے اور ان کا 15 برسوں کا تجربہ تھا، لیکن کسی ایسے انتہائی مطلوب شخص کو دشمن ملک سے نکالنا انتہائی مشکل کام تھا۔ بہرحال وہ لکھتی ہیں کہ اس دور میں انڈیا اور پاکستان کی سرحد اس قدر ناقابل عبور نہیں تھی جتنی اب ہے، اور بہت ہی کم چیک پوسٹیں ہوا کرتی تھیں، اس لیے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ پہلے تو اس شخص کو پاکستان سے نکالا جائے جو پاکستان کی انٹیلیجنس کی نگاہ میں ہے، اور پھر ان کے اہل خانہ کو نکالا جائے گا۔ چنانچہ جیک اور فرینک سرحد کا نقشہ لے کر بیٹھے۔ وہ منصوبے میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ کہیں بات لیک نہ ہو جائے اور پاکستانی انٹیلیجنس حکام مزید چوکنا نہ ہو جائیں۔ بذریعہ ریل، روڈ یا طیارے سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پاکستانی انٹیلیجنس کی موجودگی یقینی تھی۔ اس لیے فشنگ بوٹ کے ذریعے
कराची से निकलना मुनासिब नजर आया, लेकिन फिर इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान की हुदूद से इंडिया की हुदूद में पाकिस्तानी कश्ती का दाखिल होना कोई माकूल ख्याल नहीं था। और इसकी वजह यह थी 1965 की जंग के बाद हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हुआ था और दोनों ममालिक की बहरिया चौकन्नी थी और गश्त भी मामूल से ज्यादा थी। बहरहाल सोच विचार के बाद सड़क के जरिए गुजरात की सरहद से इंडिया में दाखिल होने के मंसूबे को हतमी शक्ल दी गई। इसी मंसूबे के तहत सिफारतकार को कराची से सड़क के जरिए बदीन पहुंचाना था और फिर वहां से ऊंट के जरिए लखपत की सरहद अबूर करके इंडिया में दाखिल होना था। जैक शे ने फर्स्ट सेक्रेटरी और IPS अफसर अमर सिंह से पूछा कि आपने कहा था कि कराची में आपका ऐसे लोगों से राब्ता है जो सरहद पार करवा सकते हैं, तो अमर सिंह ने जवाब दिया कि कराची रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोग जूते पॉलिश करते हैं, जिनमें से एक शख्स ऐसा है जिसका शू बॉक्स सब्ज रंग का होगा और उस पर सुर्ख सितारा बना हुआ होगा, वो हमारा आदमी है। उनके पास जाएं और उनसे कहें कि इकबाल से बात करनी है और फिर आप किसी बेंच पर बैठ जाएं, एक आदमी आपसे आकर मिलेगा। उन्होंने पहले मंसूबे के नाकाम होने की सूरत में दूसरा मंसूबा भी बना रखा था कि अगर उनसे रास्ते में पूछगिछ हुई तो वो क्या करेंगे। उनके साथ जो ड्राइवर था उसका नाम प्रभज्योत था, जो अपने हुलिये से किसी पठान की तरह लगता था और वो मुकामी ज़बान भी इसी अंदाज में फराटे से बोल सकता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिस सिफारतकार को पाकिस्तान से निकालना मतलूब था वो ना तो अपने चेहरे मोहरे और ना ही अपनी ज़ुबान से किसी तौर मकामी लगते थे। चुनांचे जैक शे ने उनके लिए एक कहानी तरतीब दी और पकड़े जाने की सूरत में सिफारतकार को सिक्योरिटी एहलकारों को ये कहानी सुनानी थी कि वो सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले अरब महाजिर हैं और उनका नाम बशीर अली है। कहानी के मुताबिक उनके वालिदैन जिंदा नहीं थे। उन्हें जो कहानी रटवाई गई उसके मुताबिक सिफारतकार को पकड़े जाने पर हुक्काम को ये बताना था कि वो सोमालिया में पले बढ़े और अपने मालिक की भेड़ बकरियां चराया करते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो उनके मालिक ने उन पर ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया और वो घर का कामकाज करने लगे। जिस दौरान उन्हें मालिक की लड़की से मोहब्बत हो गई, वो दोनों भागने वाले थे कि मालिक को पता चल गया और वो उन्हें जान से मार देने वाले थे, लेकिन वो खुशकिस्मत थे कि वहां से भाग निकले और मोगादिशु पहुंचे, जहां बंदरगाह पर 6 माह तक काम करते रहे और एक दिन वो एक जहाज में रह गए और कराची की बंदरगाह पहुंच गए। फिर कराची में उन्होंने नौकरी कर ली और अब अपने मालिक के साथ काम के सिलसिले में बदीन जा रहे हैं। उन्हें ये भी बावर कराया गया कि अगर कोई उनसे मजहब के मुतालिक सवाल करने लगे तो वो कहेंगे कि वो बहुत दीनदार नहीं हैं और मजहब की बहुत कम मालूमात रखते हैं। बहरहाल उन्हें बदीन पहुंचना था, जहां से हफ्ते में 2 बार ऊँटों का काफिला सरहद की जानिब जाता था और उसी के जरिए उन्हें सरहद अबूर करना थी। एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान के मुताबिक वो रात को निकले तो सब ठीक था। फिर सुबह उन्होंने लोगों की नज़रों से बचने के लिए गाड़ी को कच्चे और रेतीले रास्ते पर उतार दिया, जहां एक जगह वो ऐसी फंसी कि निकल न सकी। चुनाचे वो दोनों पैदल ही चल पड़े। भूख प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी कि उन्हें एक ऊंट गाड़ी वाला शख्स नजर आया जो अपने घर जा रहा था। दोनों इनके हमरा हो लिए। रात में गाड़ी वाले के इसरार पर वो इनके हाँ ही ठहर गए और फिर गाड़ी वाले नौजवान ने सुबह अपने वालिद से इजाज़त लेकर उन्हें बदीन पहुंचाने का फ़ैसला किया। जैक शे और मिस्टर अमर ने बदीन में इंतज़ाम कर रखा था, जहां सिफारतकार और प्रभजूत को एक मखसूस पान की दुकान पर जाकर एक पर्ची दिखानी थी जिस पर लिखा था सुपर ब्रांड 5-5 स्टार 5 और उन्हें बताया गया था 2 पार्सल सरहद पार भेजने हैं। प्रभजूत वहां पहुंचे तो दुकानदार से कहा, एक पान बनाना भाई, और फिर इधर उधर देखकर एहतियात से वो पर्ची पान वाले को दे दी। पान वाले ने भी उसी एहतियात से पर्ची ली और प्रभजूत को पान देते हुए कहा, ओह अच्छा आप हैं, वो खिलौनों वाली दुकान पर चले जाएं, अब्बा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बोलें कि यूसुफ ने भेजा है। प्रभजूत ने शुक्रिया अदा किया और खिलौने वाली दुकान का रुख किया और वहां जाकर कहा कि झुनझुना मिलेगा, यूसुफ ने भेजा है। दुकान पर मौजूद नौजवान ने कोई तासुर जाहिर नहीं किया, लेकिन उसके साथ पलंग पर बैठे एक मुअम्मर शख्स ने कहा, यूसुफ ने भेजा है तो ठीक है, मेरा लड़का आपका काम कर देगा। और फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, रज़ा उनको घर ले जाओ और अम्मी से कहो इनके लिए खाना बना दें, अंदर का कमरा साफ कर दो,
नहाने के लिए गर्म पानी रख दो, ये शाम को जाएंगे। दूसरी जानिब सिफारतकार प्रभजोत की राह देख रहा था कि उन्हें एक पुलिस एहलकार नजर आया जिस पर उनका खून सूखने लगा। जब प्रभजोत ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गए। प्रभजोत ने रजा से कहा कि वो पुलिस एहलकार का ध्यान बटाए और फिर वो वहाँ से निकल पड़े। जब रजा ने सिफारतकार को देखा तो वो अपने चेहरे से उन्हें मकामी शख्स मालूम न हुआ, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि इसे अपना काम पूरा करना था। उसने सर पर पगड़ी बांधी और गले में चादर ऐसे डाली कि ठोड़ी तक छुप गई और फिर वो कई राहदारियों से होते हुए उन्हें अपने घर ले गया, जहां उन्होंने आराम किया और पेट भर कर खाना खाया। शाम को बूढ़े शख्स ने आकर कहा कि कराची के साहब से बात हो गई है, मेरा लड़का यूसुफ अभी आता होगा, वो आपको पार पहुंचा देगा। सरहद से 1 किलोमीटर पहले छोड़कर वो वापस आ जाएगा। आप उसकी बात को ध्यान से सुन लेना और वो जैसा कहे वैसा ही करना। यूसुफ आया और उसने कहा कि आप कंबल लपेट लें और फिर वो उन्हें लेकर निकल गया क्योंकि रात को काफिला निकलने वाला था। जैसे ही वो ऊंट पर सवार हुए, अचानक मुकामी तहसीलदार की जीप काफिले के करीब आकर रुकी। उसने सवाल किया कि कौन है? यूसुफ ने जवाब दिया, सलाम साहब, यूसुफ हूँ, चांद गुलाम का बेटा। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? चचा को परले गांव छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, अब्बा कैसे हैं? जी हुजूर, खैरियत से हैं। थोड़ी देर तक तहसीलदार ऊँटों को जाता देखते रहे और यहाँ दोनों के गले खुश्क होते रहे। जब तहसीलदार नज़रों से ओझल हो गया तो यूसुफ ने माउथ आर्गन निकाला और किसी गीत की धुन फजा में बखेरने लगा। थोड़ी देर बाद मनाजिर बदलने लगे और एक जगह रुककर यूसुफ ने उन्हें ऊँटों से उतारा और कहा कि यहाँ से दूसरा कारवां जाएगा जिसके साथ हम हो लेंगे। थोड़ी देर में वो काफिला आ गया और वो उनके साथ हो लिए। रात भर ऊँटों की सवारी रही और रात आंखों में कटी, यहाँ तक कि सुबह सादिक होने लगी और उन्होंने देखा कि दूर सामने कोई बस्ती है। तभी यूसुफ ने ऊँट रोका और प्रभजोत से कहा कि आप दोनों एक ऊँट पर बैठ जाएं, मैं बस यहीं तक जा सकता हूँ। सामने आपका छोटा सा सरहदी गांव लखपत है, वहाँ पहरेदार से बात कर लेना और आप कारवां के साथ चलते रहना। गांव पहुँचते ही आप महफूज हो जाएंगे। प्रभजोत के ऊँट पर बैठने से कबल सिफारतकार ने यूसुफ को 500 रुपये दिए। उसने शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो लिया। यूसुफ पाकिस्तान की जानिब मुड़ा और उनका ऊँट इंडिया की सरहद में दाखिल था। किताब की मुसन्निफ़ा डिबोरा ये ड्रामाई कहानी बयान करने के बाद बताती हैं कि इस दौरान उनके वालिद कब घर वापस आते किसी को इल्म ना होता। उन्होंने इन बातों को खुद से भी छुपा रखा था। बहरहाल ये मरहला इंडियन सिफारतकार के अहले खाना को इंडिया रवाना करने का था। इंडियन डिफेंस अताशी अपने घर से 2 दिनों से लापता थे, इसलिए उनकी अहलिया मर्सी बहुत परेशान थी। जब दरवाजे की घंटी बजी तो वो दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, लेकिन शौहर के अलावा दूसरे शख्स को देखकर वो कदरे मायूस हो गईं। घर पर सिफारतकार का 15 साला बेटा सीसल और 16 साला बेटी साइबल के अलावा 6 साल की बेटी मलाइका भी थी। बहरहाल जैक्शे ने उनसे बात की और बताया कि उनके शौहर एक ज़रूरी काम से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनके शौहर ने फ़ोन पर उनसे कहा है कि मैं आप लोगों को फ़िल्म बारन फ्री दिखाने ले जाऊं। आप लोग 5:30 बजे तक तैयार रहेंगे। बच्चे फिल्म देखने के जिक्र से खुश हो गए। उन्होंने रेक्स हॉल में फिल्म देखी और वापस चले आए। जैक चाहते थे कि अगर कोई उनकी निगरानी कर रहा है तो वो ये देख ले कि दोनों खानदान एक साथ फिल्म देखने गए थे। दूसरे दिन सुबह जैक एक बार फिर मर्सी से मिलने गए और उन्हें हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया कि तमाम फैमिलीज़ इंडिया वापस जाएंगी क्योंकि उनके मुताबिक ये जगह महफूज नहीं है। मर्द कुछ दिनों तक यहाँ रहेंगे और फिर हाई कमीशन के फैसले के बाद ही कुछ तय किया जाएगा। जैक ने कहा, आप सबको मालूम है यहाँ पर बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है, इसलिए हुकूमत दुश्मन ममालिक में होशियार रहना चाहती है। जैक की बातें सुनकर मर्सी मज़ीद परेशान हो गई कि उन्हें कब जाना है। वो घरेलू खातून थीं और अपने शौहर के बगैर कुछ नहीं करती थीं। उन्होंने पूछा कि कब जाना है तो जैक शे ने
मजबूत लहजे में कहा कि अभी आप जो इंतहाई ज़रूरी सामान है इसे एक बैग में रख लें। कागजात, जेवरात और बदलने के लिए एक जोड़ी कपड़े काफ़ी होंगे, कोई सूटकेस नहीं। मर्सी ने पूछा और घर की बाकी चीज़ों का क्या होगा, तो जैक ने कहा कि इसे हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद जल्द ही सब तैयार थे। डिबोरा बताती हैं कि उनके वालिद ने सिफारतकार के अहल खाना को बहरी रास्ते से भेजने की मुकम्मल मंसूबाबंदी कर रखी थी। इसके लिए उन्होंने कराची की बंदरगाह से बम्बई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, जाने वाली तिजारती शिप में 2 पार्सल भेजने की दरख्वास्त कर रखी थी। वो बंदरगाह से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए खुद ही गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। एक पुलिस एहलकार ने उन्हें रोका, लेकिन जब उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया तो उसने रजिस्टर में एंट्री करके उन्हें वहां जाने दिया। डिबोरा अपनी किताब में लिखती हैं कि इस सब कुछ के बावजूद जैक शे के दिल में नाकामी का डर था, क्योंकि वो जानते थे कि बाज़ औक़ात अच्छी से अच्छी मंसूबाबंदी भी नाकामी से दो चार होती है। बहरहाल उन्हें इस तिजारती शिप तक पहुंचने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई और उन्होंने बरवक्त जहाज़ के कप्तान अजय मिश्रा के केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। जब तक सिफारतकार शख्स के अहल खाना पहुंचे, उन्हें चाय पेश की गई, लेकिन इसी दौरान जैक ने अजय मिश्रा को डेक पर ले जाकर वजाहत दी। उन्होंने पूछा, मुझे उम्मीद है कि आपको तफसील बता दी गई होंगी। इसके बाद जवाब में शिप के कप्तान ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक पार्सल को हिफाजत से बम्बई पहुंचाने के लिए कहा गया है, इसमें किसी मेहमान या मुसाफिर का जिक्र नहीं था। जैक ने मौका की नज़ाकत को समझते हुए उन्हें कहा कि ये कराची हाई कमीशन में हमारे सिफारतकार की फैमिली है। हमारी हुकूमत चाहती है कि उन्हें खामोशी से यहाँ से इस तरह भेजा जाए कि किसी को पता न चले। इसके साथ उन्होंने कप्तान को ख़त हवाले किया और कहा कि जहाज़ पर इनकी मौजूदगी को दर्ज न किया जाए और इस फैमिली को जहाज़ के मालिक के केबिन में जगह दी जाए। यह सफ़र छोटा है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मर्सी और बच्चे जहाज़ में कप्तान के हवाले थे। कप्तान ने उन्हें जहाज़ के मालिक के कमरे में पहुंचा दिया, जहां पहुंचकर बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन कप्तान मिश्रा की परेशानी बढ़ गई थी। डिबोरा लिखती हैं कि 2 दिन बाद वो बम्बई की बंदरगाह पर थे, जहां उन्हें लेने के लिए वो पाकिस्तान से फरार होने वाले सफ़ीर खुद मौजूद थे और जैक शे को इनके इस कारनामे के लिए हरचंद के मौत के मुंह में जाना पड़ा था, लेकिन उन्हें वापसी पर वो शिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। 16 अप्रैल सन 1969 को ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में इंडिया के सदर वी गरी ने, जब वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और इनकी काबीना के वज़रा की मौजूदगी में इंडियन बहरिया के कैप्टन जैक शे के सीने पर मेडल लगाया, तो उनकी अहलिया डोरथी की आंखों में आंसू थे।